Hello YouTube. So today the date is I don't know, maybe 15 or 16, whatever. Uh, if any of you are connected to me on Instagram or Telegram, you must be knowing that what has happened to me in the last 1 week. The last 1 week has been very difficult for me and my family, but long story short, that everything went well, and I don't have any bad news for now. So let's not uh, dwell much into that. जो हो गया सो हो गया. But these are some dilemmas that I always think about. I keep on overthinking that whether to prioritize our temporary goals or we should prioritize some human relationships which are one time only, and once we lose them permanently. Even if we get them back, it doesn't remain the same. So amidst all those dilemmas, I chose to stay with my family during the tough time, and I'll not elaborate the video elaborate the happenings in much detail in this video, maybe sometimes else. But for now, if you want to read it, you can pause the video and read it. And just one thing I wanted to share, that first of all, thank you so much for reaching out personally and asking me that why I wasn't active, why I wasn't posting the updates. And also after I posted, what happened, a lot of people reached out to me. Thank you everyone. But one message that I really loved, up amidst all the other ones, one line that I written in this paragraph was that I have been standing there in front of the ICU and praying to the divine power which I barely believe in. ठीक है. So I wrote this line. This line is very close to me, but in reply, in context of that line, someone texted me yesterday, and the person wrote that uh, maybe our everyday life asks us to be hopeless in something which is believable and hopeful in unbelievable things. And it's important that we do it without putting in logic. I really love this text, and you can pause it, you can read it yourself. I really love the idea behind this. And yeah, so that is this. We are forced to pause, we start again. It's unfair, but that's how life works, right? So that was all about what happened in the last 1 week. And today is Friday. I'll most probably start my study from Monday. ठीक है. But some things has to be changed forcefully, some plans has to be changed. Like मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, ऑप्शनल और एथिक्स, ये चार चीज कर रहा था ना अभी इतना दिन तक, मतलब 7-8 दिन, जितने भी दिन मैंने किए. सो नाउ द थिंग इज कि अभी मेरा हो गया है 1 वीक का बैकलॉग. ठीक है, अगर मैं अभी वो चार चीज कंटिन्यू करूँ जो मैं कर रहा था, इन दैट वे इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एथिक्स इन दिस मंथ इटसेल्फ. अभी तो आंसर राइटिंग कुछ किया ही नहीं है मैंने. सो माई टारगेट इज कि मैं और 1 वीक लेके एथिक्स का पूरा कंटेंट पार्ट कंप्लीट कर लूँ, एंड फिर जब नेक्स्ट मंथ में GS3 का कंटेंट पार्ट चलेगा, उस टाइम मैं एथिक्स का आंसर राइटिंग करते चलूंगा एक स्लॉट निकाल के. ठीक है. एंड प्रीलिम्स का जो मैं रिवीजन कर रहा था अभी, वो मैं रोक देता हूँ, इकोनॉमी मॉडर्न हिस्ट्री दोनों. आई विल स्टार्ट आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, एक बार मेरा बैकलॉग पूरा अप टू डेट हो जाए. ठीक है. एंड होपफुली कुछ और फर्दर ना प्रॉब्लम आए. बट सम थिंग्स हैपेंड, एंड जैसे कि इस साल प्रीलिम्स के पहले मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी. आई तो कुडंट इवन विजिट देयर प्रॉपरली, मतलब एक दो बार आई कुड जस्ट गो. बट इस टाइम पे मतलब माई ग्रैंड फादर वॉज एडमिटेड, तो मम्मी को अकेले आई कांट लीव बिकॉज उनका तो पापा ही है ना, नो मैटर हाउ स्ट्रांग माई मदर इज. बट दैट इज इट. ठीक है. तो द थिंग इज कि अभी अगर सब कुछ सही चलता है तो मैं आज, और लास्ट 1 वीक हैज बिन वेरी एक्टिव, तो मैं ये 3 दिन थोड़ा रेस्ट करता हूँ एंड आई स्ट्रेटेटाइज एवरीथिंग. ठीक है. बट मेरा अभी यही प्लान है कि मेरा अभी प्रायोरिटी रहेगा कि आज 17 है ना, तो आज 17 है, तो अभी 30 दिन है हमारे पास. ठीक है. 30-31 दिन है, तो इसमें मुझे एथिक्स को कंप्लीट करना है, एटलीस्ट कंटेंट पार्ट, रिवीजन पार्ट, शॉर्ट नोट्स पार्ट एंड PYQs. ठीक है. ये सब चीज मैं कर लूंगा, एंड नेक्स्ट मंथ आई विल डू योर आंसर राइटिंग, प्रॉपर आंसर राइटिंग टेस्ट एंड वट एवर HLT एंड FLT जो भी है. ठीक है.
बट इसके साथ मैं अभी एक चीज और करना चाह रहा हूँ जो कि है करंट अफेयर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो मैं करंट अफेयर्स एक स्लॉट में शुरू कर देता हूँ, ठीक है। एंड ऑप्शनल मैं अभी इस 15 दिन में थोड़ा रोक के एथिक्स को थोड़ा पुश करता हूँ, ठीक है। एंड ऑप्शनल आई विल री स्टार्ट फ्रॉम ऑगस्ट। तो अब ताकि मेरा बैकलॉग ज्यादा क्रिएट ना हो, जो ऑलरेडी बैकलॉग क्रिएट हो चुका है उसको मैं कवर अप कर लूँ अभी अगले इसी मंथ के एंड तक, ठीक है। सो द समरी इज कि अभी मैं एक स्लॉट में तो, ठीक है, स्लॉट वन में तो मैं एथिक्स करने वाला हूँ, एंड स्लॉट टू में आई विल बी डूइंग करंट अफेयर्स, ठीक है, बोथ सी प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड, स्पेशली फॉर मेंस, बट प्रीलिम्स का भी थोड़ा टच में रहेगा। एंड एक स्लॉट मुझे और निकालना है ताकि मैं एथिक्स को और एक स्लॉट दे पाऊँ, ताकि मेरा दिन में दो दो करके कवर हो, तो आई कैन कवर इन अ फास्ट पेस मैनर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एथिक्स पार्ट, एंड आई थिंक कि हो जाएगा कवर, इतना भी कुछ वो नहीं है। एंड ऑप्शनल तो आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस, बट ऑप्शनल में मेरा एक ही चीज है कि मुझे शॉर्ट नोट्स मेकिंग करना है, ठीक है। तो अगर मैं टाइम निकाल पाता हूँ 1 से 2 घंटा इसी 15-16 दिन में, तो अभी तक मेरे पास मेरा 4 यूनिट कवर हो चुका है रिवीजन ऑप्शनल का। तो पहला 4 यूनिट पेपर वन का मैं शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट सॉर्ट कर लूँ, तो फिर मैं जो आपका अगस्त आ जाएगा, तो अगस्त से मैं फिर बाकी के यूनिट्स करूंगा, एंड उनका तो मैं साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलूंगा, जो कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर सकूं, ऐसा मुझे शॉर्ट नोट्स चाहिए जो कि मैं आंसर में भी उतार के आ सकूं। मेरा क्या इशू है ना कि मेरे पास डबल एजेड स्वॉर्ड है, ठीक है। सोशियोलॉजी का मेरा अंडरस्टैंडिंग डिसेंट है, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन है, ठीक है, बीए ऑनर्स किया मैंने सोशियोलॉजी में। बट द इशू इज कि मैंने कॉलेज में 2000 वर्ड्स के आंसर लिखे हैं, ठीक है, जो कि यूपीएससी में यूजलेस है। एंड उस 2000 वर्ड्स के कंटेंट को शॉर्ट करके 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में लिख के आना इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ, ठीक है। एंड ऑल्सो यूपीएससी का आंसर राइटिंग डिमांड समथिंग एल्स, जैसे कि मैं टॉपर्स का देख रहा हूँ, टू मच थिंकर्स एंड टू मच jargons are not very much scoring in UPSC optional for sociology at least. तो आई विल हैव टू री-स्ट्रेटाइज माई सोशियोलॉजी स्ट्रेटेजी। मैं टॉपर्स के कॉपीज देख रहा हूँ, मैं देखना शुरू कर दिया था ऑलरेडी लास्ट डेज में, कि मैं टॉपर्स के टेस्ट के कॉपीज देख रहा हूँ कि जिनको हाईएस्ट मार्क्स मिले वो लोग क्या लिख रहे हैं क्वेश्चन में। पहले मैं वो क्वेश्चन खुद लिखूंगा, एंड आई विल चेक कि वो लोग और मेरे में क्या डिफरेंस हो रहा है। सो दैट्स समथिंग दैट आई एम प्लानिंग फॉर सोशियोलॉजी। तो अभी बेसिकली फ्राइडे हो गया ना, सैटरडे संडे मैं छुट्टी मारता हूँ थोड़ा और, एंड मंडे को, ठीक है, विच विल बी 18, 19 एंड 20, ठीक है। तो 20 जुलाई से मैं फिर से डेली अपडेट अपडेट करता हूँ, ठीक है, 20 जुलाई से, एंड 20 to 31 जुलाई तक, ठीक है, 31 जुलाई तक 11 दिन, 11-12 दिन जितने भी है उसमें मैं कवर करता हूँ पूरा का पूरा एथिक्स with PYQs, ठीक है। So yeah, that is it for the day, and do let me know how you guys have been doing all this time, ठीक है, कितना हो गया आप लोग का, कितना बैकलॉग हो गया, एंड अकॉर्डिंग टू MRBD शेड्यूल अभी तक कंटेंट तो खत्म हो जाएगा ना कुछ दिन में ही और, ठीक है। तो या मिलते हैं एज सून एज पॉसिबल, कीप स्माइलिंग।